ஆடு நினைக்கிறது ஓனா எழுகிறாமா? இஸ்லாமியர்கள் பிரச்சனை என்று நீங்கள் வருத்தப்படுகிறீர்களா? சார் ஒன்னு கேட்கிறேன் ஐயா, நீங்க உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம், எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா? நீங்கள் பசு தோல் போற்றிய புலி, நீங்கள் வந்து மக்களை ஏமாற்றப்பார்கள், வாக்கு வங்கி அரசியல் செய்யாதீர்கள்। मान्यवर और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई, मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है। ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवरों, जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से। இந்த வக்கு மசோதாவை கொண்டு வருவதற்கு முக்கியமான காரணம் யார் என்றால், எண்ணிக்கை என்றால் 71, 62, 36. இது என்ன தெரியுமா எண்ணிக்கை? 2014 யூபியிலே, உத்தரப்பிரதேசத்திலே பாஜக வென்ற எம்பி சீட்டுகள் 71. 2019 அவர்கள் வெற்றி பெற்ற எம்பி சீட்டுகள் 62. 2024 அவர்கள் வெற்றி பெற்ற எம்பி சீட்டுகள் 36. ஏன் 1990 பாபர் மசூதியை இடிக்க வேண்டும், இடித்த இடத்திலே ராமர் கோயிலை கட்ட வேண்டும், ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்று 71 இடங்களை பிடித்தார்கள். பிறகு அவர்கள் மவுசு சரிந்த பிறகு 36 கோயிலை திறந்தார்கள். பெருமாள் ராமர் கோயிலை பெரிய அளவிலே செய்தார்கள். ஆனால் இஸ்லாமியர்களிலிருந்து ராமர் மசூதியை பிடிங்கினால் தவிர அந்த இடத்தை விட இந்துக்களிடமிருந்து சுமார் 4500 ஏக்கர்களை அவர்கள் பிடுங்கினார். குறிப்பாக ஏழை விவசாயிகள் இந்துக்கள். இதற்கு விமான நிலையம் கட்டுவதற்கும் சாலைகள் போடுவதற்கும், பணக்காரர்கள் வந்தால் 5 நட்சத்திர ஓட்டல்களில் தங்குவதற்குமான செய்தார்கள். ஆனால் விளைவு என்ன? நடந்து முடிந்த 2024 தேர்தலில் அயோத்தியில் வெற்றி பெற்றது யார்? சமாஜ்வாடியை சேர்ந்தவர் 56,817 பெற்றார். அவர்கள் தாங்க முடியவில்லை. எப்படியாவது இந்துக்களும் முஸ்லிமும் வெறுப்பு உணர்வு, அவர்கள் வெற்றிக்கு காரணம் வெறுப்பு வெறுப்பு வெறுப்பு. அந்த வெறுப்பு உணர்வு, வெறுப்பு அரசியல், பிரிவினை அரசியலை செய்தால் மட்டுமே அவர்கள் வாழும். கேட்கிறேன், ஆடு நினைக்கிறது ஓனா எழுகிறாமா? இஸ்லாமியர்கள் பிரச்சனை என்று நீங்கள் வருத்தப்படுகிறீர்களா? தொடர்ந்து ஒவ்வொரு முறையும் இஸ்லாமியர்கள் எதிராக மசோதா கொண்டு வந்த யார்? திரு அமித்ஷா அவர்கள் தானே. காஷ்மீர் பில்லை கொண்டு வந்தது யார்? அமித்ஷா அவர்கள் தானே. அப்போது சொன்னார், அப்போது கேட்டோம், ஐயா நீங்கள் கொண்டு வருகிறீர்கள், வட இந்தியாவுக்கு மட்டும் கொண்டு வருகிறீர்களே, எங்கள் இலங்கை தமிழர்கள் கொண்டு வாருங்கள். ஆனால் உங்கள் காதிலே செவியிலே விழவில்லை. இன்று இதை கொண்டு வருங்கள், இதில் பாதுகாக்கிறார். அதாவது வக்கு சொத்துக்கள் குறைந்த விலைக்கு போகிறதா? என்ன கஷ்டப்படுறா பாருங்கள். வக்கு சொத்துக்கள் குறைந்த விலைக்கு கொடுக்கிறார்கள். சார் ஒன்னு கேட்கிறேன் ஐயா, நீங்க உங்களுக்கு வந்தால் ரத்தம், எங்களுக்கு வந்தால் தக்காளி சட்னியா? நீங்கள் ஏர் இந்தியாவை விற்றீர்களே, அது அதிகாரப்பூர்வமாக 16,000 கோடிக்கு ஏர் இந்தியா விற்றீர்கள். ஆனால் நீங்கள் கட்டிய கடன் 63,000 கோடி கடனை நீங்கள் கட்டினீர்கள். அது மட்டுமா? உங்கள் நண்பர்களுக்கு அதானியா இருக்கட்டும், அம்பானியா இருக்கட்டும், அவர் கடனெல்லாம் தள்ளுபடி செய்தீர்களே. 4.5 லட்சம் கோடிகளை அதிகாரப்பூர்வமாக நீங்க செய்தீர்களே. அப்போது நீங்க அதுக்கு ஒரு கொண்டு வர வேண்டுமா? இப்போது சொல்லுகிறார்களா ஐயா, பெண்களுக்கு एयर इंडिया को बेचने से वक्फ बिल का क्या संबंध है? फुल्ली वक्फ, अबाउट वक्फ सर, अबाउट वक्फ. आप वक्फ पे சார், இன்றைக்கு நீங்கள் சொல்றீர்கள், எங்கள் தமிழ்நாட்டிலே வக்ஃப் போர்டு சேர்மனாக ஒரு பெண் இருந்திருக்கிறார்.
இப்பொழுது கூட எங்கள் தமிழ்நாட்டு வக்ஃப் போல 2 பெண்மணிகள் இருக்கிறார்கள். அது ஒரு பெண்மணி யார் என்றால் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் லீக் தலைவர் அப்துல் சபாதின் பெண். அவர் முன்னாள் எம்பியாக இருக்கிறார். இந்த பிரச்சனை பெண்களை பற்றி நீங்கள் பெருசா இல்லை, ஏற்கனவே வக்ஃபிலே பெண்கள் வந்திருக்கிறார்கள். நீங்கள் புதிதாக செய்வது போல் செய்கிறீர்கள். உண்மையில் உங்களுக்கு என்ன, வருகிற தேர்தலில் யூபியை வெல்ல வேண்டும். யூபியை வென்றால் மட்டுமே நீங்கள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும். அப்ப என்ன செய்வீர்கள்? இந்த வக்கு பாத்தீங்கன்றால் கிட்டத்தட்ட வக்கு நிலங்கள் வந்து give me 10 minutes sir, I didn't cross 3 minutes sir. வக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்றால் வக்கு நிலங்கள் பாத்தீங்கன்றால் இந்தியாவிலே 8,70,000 சொத்துக்கள் இருக்கிறது. அதிலே பாத்தீங்கன்றால் 9,40,000 ஏக்கர்கள் இந்தியாவில் இருக்கிறது. சுமார் 1.2 லட்சம் கோடி ரூபாய். அதில் 25% சொத்துக்கள் இங்கே இருக்கிறது, உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் இருக்கிறது. அப்பொழுது விட்டுவிடுவீர்களா? நான் இதை செய்ததன் மூலம் என்ன இருக்கிறது? நான் கேட்கிறேன், ஏன் இந்த பிரிவினைவாதம்? இன்று பார்த்தீர்கள் சிறுபான்மையினருக்கு எதிராகத்தான் இந்த அரசு செயல்பட்டது. இன்று இஸ்லாமியர்கள் எதிர்க்கிறீர்கள், அடுத்த யாருக்கு செல்வீர்கள்? பார்த்தீர்கள் நீங்க வாஜ்பாய் இருந்த போது ஒரு இஸ்லாமியர் அமைச்சராக இருந்தார். இப்பொழுது ஒரு இஸ்லாமியர் கூட உங்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இல்லை. நாங்களாவது முஸ்லிம்களுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கிறோம். ராஜ்யசபால எங்களுக்கு முஸ்லிம் எம்பி இருக்காங்க. அது மட்டுமா, இன்று ஒரு சிறுபான்மையர் மந்திரியா இருக்கிறார். நான் அவர் சொல்றேன், முதலே இஸ்லாமியர்களை ஒழித்தார்கள், அடுத்தது கிறிஸ்துவர்களை ஒழிப்பார்கள், அடுத்தது தலித்தை ஒழிப்பார்கள், யாரும் இருக்க மாட்டார்கள். நான் இதனால் கேட்பதென்றால், ஐயா நீங்கள் நல்ல எண்ணத்தை செய்யலை, நீங்கள் பசு தோல் போற்றிய புலி, நீங்கள் வந்து மக்களை ஏமாற்றப்பார்கள், வாக்கு வங்கி அரசியல் செய்யாதீர்கள். Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. मान्यवर, इसी सरकार में बजट जो आए, इसमें गरीबों को गैस, शौचालय, पानी, 5 लाख तक का बीमा, 5 किलो अनाज, बिजली और घर दिए गए। मान्यवर, और कन्वर्जन कानून की बात करते थे और हंसते हंसते कहते थे कर्नाटक सरकार कन्वर्जन कानून लेकर आई है। सबसे पहला कन्वर्जन कानून उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार लेकर आई, मगर उस वक्त कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलती थी, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलती। मध्य प्रदेश और उड़ीसा में सबसे पहला कन्वर्जन के खिलाफ कानून कोई लाए तो कांग्रेस पार्टी लाई, और मुझे गर्व है मेरी पार्टी की सरकारें कन्वर्जन पर कानून लाती। मान्यवर, सबको अपना धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, कोई शौक से करे, मगर लोभ, लालच, भय, इससे धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। किसी गरीब के पास खाना नहीं है, खाना देकर उसका धर्म बदला दोगे? कोई थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका धर्म बदला दोगे? ऐसे नहीं होगा मान्यवर। और आपने भी किए हैं कानून, आप नए नए आए हो, आपको मालूम नहीं है मान्यवर, इनको मालूम नहीं, अभी अभी आए हैं 5 साल से। ये कांग्रेस पार्टी ने कानून किए थे मान्यवर। अपील का प्रावधान भी हमने आगे बढ़ाया, और गैर मुसलमानों के द्वारा दान की गई संपत्तियों पर, गैर मुसलमानों की दान की संपत्तियों पर वक्फ अधिनियम को हमने लगने से मना कर दिया। मानव उनके लिए चैरिटी कमिश्नर का कायदा है। ये प्रैक्टिसिंग इस्लाम, जो इस्लाम की प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए मान्यवर हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट को भी समाप्त कर दिया। मान्यवर, ट्रस्ट का नियमन करने का जो कानून होता है, जैसे चैरिटी कमिश्नर के कानून में कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं है। जहां क्लासेस आते हैं वहां ओवरराइडिंग इफेक्ट होती है। यहां ओवरराइडिंग इफेक्ट इसलिए देगी कि आप जिसकी संपत्ति हड़पी जाएगी उसको कोर्ट से जाने से रोकना चाहते थे, इसलिए ओवरराइडिंग इफेक्ट जो हमने मान्यवर निकाल दिया है। मान्यवर, एक ऐसी चर्चा लेकर आए कि चर्चा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2013 में जो अमेंडमेंट बिल आया, जिसके कारण ये बिल लाना पड़ा, वो बिल में कुल मिलाकर
5.4 घंटे चर्चा हुई थी, 5.5 घंटे दोनों सदन मिलाकर, और इस बिल में दोनों सदन मिलाकर 16 घंटे चर्चा हो रही है मान्यवर, 16 घंटे। इसके अलावे हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए, वक्फ बोर्डों की संख्या जो उपस्थित वक्फ बोर्ड भी हुए राज्यों के 25 हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि 15 राज्य सरकारों के आए, सांसद 8 हुए, विधायक विधान परिषद 7 हुए, और अध्ययन दौरे 3 किए गए, और अल्पसंख्यक आयोगों को भी 5 बुलाया गया। ये सबसे 92.68 लाख करीब 1 करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए, इसकी मीमांसा कर ये कानून बना है। आप ऐसे इसको खारिज नहीं कर सकते हो पूरी प्रक्रिया को। आप जो कर रहे हैं 5.5 घंटे की प्रक्रिया, ये बहुत लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और हम 16 घंटे चर्चा करते हैं कि चर्चा आपके अनुरूप चर्चा नहीं हो सकती। ये सदन में हर सदस्य बोलने के लिए स्वतंत्र है, कोई परिवार की यहां चलती नहीं है, ये तो जनता के नुमाइंदे हैं, किसी की कृपा से नहीं आए हैं। मान्यवर, वो जो दिल में है, जो जनता की आवाज है, वो रखेंगे। मान्यवर, एक सदस्य द्वारा कहा गया कि ये मिसलीडिंग है कि पुराने कानून में 2013 के जो अमेंडमेंट्स थे उसमें अपील का प्रोविजन था। अब मैं कहना चाहता हूं 83(9) उसमें अधिकरण द्वारा किए गए किसी भी विनिश्चय का आदेश विरुद्ध, चाहे वो अंतरिम हो या फाइनल, इस पर अपील नहीं हो सकती। इसका मतलब अपील का प्रोविजन आपने रखा ही नहीं था। सिविल न्यायालय, राजस्व कोर्ट और अन्य प्राधिकरण उसके अधिकार क्षेत्र पर भी प्रतिबंध लगा दिया, और सरकारी अधिसूचना जो बाद में वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के एडवाइस से होगी, इसको भी कोई चुनौती नहीं दे सकता। मान्यवर, मुझे ये बताओ कि अभी अभी फैशन है संविधान लहराने की, ये संविधान के हिसाब से सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, ये हमने तो खैर वक्फ को छेड़खानी नहीं की, वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद के अंदर बदलाव किया है, मगर वक्फ के लिए भी क्या क्या जजमेंट आए। सैयद फजल पुकोया थंगल बनाम भारत संघ 10/11/28 को केरल उच्च न्यायालय ने उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यह मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। इसका फंक्शनिंग मान्यवर एडमिनिस्ट्रेटिव है। धार्मिक क्रियाकलापों को तो वक्फ ने करना है, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चैरिटी का काम, वो वक्फ बोर्ड को नहीं करना है भाई। ये केरल हाईकोर्ट ने किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी, उसने तो मुतवल्ली तक भी कहा है
अगर हम मुतवल्ली तो जो धर्म का है वही रखेंगे। मान्यवर, इन्होंने कहा एक मुतवल्ली के कर्तव्य विशुद्ध रूप से धर्म निरपेक्ष कैरेक्टर है, मगर हम मुतवल्ली को छू नहीं रहे। मान्यवर ये कह रहे थे कि मान्यवर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। मान्यवर मान्यवर 2013 में अन्यायी कानून आया। भाई करने थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है इसके कारण डरे। मान्यवर भाई बैठ जाओ। मान्यवर बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है, छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सिखाएंगे। मान्यवर 2013 के, अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए।